आम्ही घेऊन पाठी बरोबर देखाड कशी टी-शर्ट ले जा कपड़ा कपड़ा चल म्यूजिक रखूँगा निकालने का चेक कर
The daughter was there only. Good evening, Namaste, Assalamu Alaikum. And again evening and Dr. P.B. Shetty's absence, one of our chief guests, who is at Gwalior being the observer for the India-Pakistan match. We have with us the Honorary Joint Secretary of Mumbai Cricket Association. I request Mr. Hemant Vaingankar to please come and dance. Next, friends, it is truly due to this person that Daisar Sports Club has once again got a turf to play. It no more plays on a cemented wicket. With the help of Bhavdevi Krida and Sanskritik Mandal, we have the secretary. He is also the Vibhag President of the Daisar Vidhan Sabha. I request Shri Vijay Pawar to please come and dais. The two lovers of cricket, Chairman of Gala Precision Technologies Private Limited, I request Vishenji Gala to please come and dais. Vishenji bhai, please. Tell you something in very short. I heard Vishenji bhai, Hemant bhai, really interesting part. Vishenji bhai was one of the guests in our program, and it was really nice to see that we make it a point to read from somewhere, we have it a look and do. But Vishenji bhai really speaks from his heart, and that is the best part we found with Vishenji Gala when he was our chief guest in one of the programs. Next, the director of Prabhat Group of Companies, I request Hirji Bhai Shah to please come and dais.
the Managing Director of Remy Group of Companies, Shri Hemant Kumar Rambia. For the past 38 years, from the day the Dahisar Sports Club has been formed, in 1970, when we were affiliated to Mumbai Cricket Association, and after a gap of around 12 years, Girnar team was always the sponsor for the Dahisar Sports Club. We have a co-sponsor with us. I request the Director of Total Sporting and Fitness Solution, Shri Nitin Bhai Shah, to please come on that. Well friends, this is our team on the dais. I request Nabu Bhai to please take your seat. Praveen Bhai, बैठिए ना. It's only after 34 years that in the 35th tour, it is the first time that a state or a place is being repeated, and it is truly due to the request of the people of Gandhidham that the Dahisar Sports Club is once again visiting Kutch on its 35th cricket tour in this past 38 years. With 16 players, one captain and one sports manager. The best part is the youngest player in this tour is of 13 years, but running a club for 37 years, as rightly said by Professor Ratnakar Shetty in one of the speeches, that running a club like a dictator or a person like Hitler, Mr. Praveen Gogri has done it, and we feel it proud that Hitler is this team. A lot has been said. Our guests are on the dais. I would request Mr. Praveen Gogri to please welcome the chief guest of this evening with a bouquet. I would request the president of the Dahisar Sports Club. Again, Praveen Bhai would do the honors of welcoming Mr. Mirji Bhai Shah. Mirji Bhai. Philip Mamre would do. Dinesh Nagu, you are please requested here to welcome Mr. Nitin Shah of Total Sporting. We have few more friends with us. Praveen Bhai would do the honors to Raj Computers, and I would request Praveen Bhai to please present a bouquet, a flower to Mr. Rajesh Chheda. Give him a big hand. Rajesh Bhai has full-heartedly supported our club. I read it one of the books. It said that all the great personalities who were born in India, I suppose, were very peculiar about the time they reached their program. Never missed a single program, and he is the person who needs a very big hand because he has been present in all the programs and right on time. If we have told, sir, आपको हमारे यहाँ 5:30 बजे आना है, तो that person is here at 5:25. It feels honored. We would also like to welcome. We also have with us Hemant Garat. Dipesh Bhai, go together. Well friends, out of time, we would request first Visanji Bhai to say a few words to the boys who are going to Kutch. Visanji Bhai, please. सामान्य રીતે મને બોલવાનો પસંદ આવે તો अच्छी अथवा गुजराती बोलनी, लेकिन मैं हिंदी भी अच्छी बोल सकता हूँ। आप जो पसंद करेंगे, मैं सोचता हूँ हिंदी विल बी बेटर, क्योंकि सब यहाँ पर हर प्रकार के, हर किस्म के जाति के व्यक्ति हैं, जहाँ पर मैं सोचता हूँ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हम लोग हिंदी में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टेज पर विराजमान सर्व महानुभाव
दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के सर्वे सर्वासी प्रवीण भाई गोगरी और उनके सब अधिकारी जो गांधीधाम जा रहे हैं, वो सब स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और आप सब हाजिर भाई और बहनों, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब, मैं इनको काफी सालों से जानता हूं। प्रवीण भाई को क्रिकेट में तो काफी इंटरेस्ट ही है और भी गेमों में, वॉलीबॉल में भी। गए साल में जो डाला स्प्रिंग वॉलीबॉल कप था, जो इन्होंने बिद्रा की ओर से जो जीता गया गढ़सीसा के सामने, उसमें भी कैप्टन थे तो प्रवीण भाई गोगरी, वॉलीबॉल में भी। क्रिकेट के अंदर कवियों सेवा समाज की ओर से जो नवनीत कप होता है, उसमें भी इन्होंने सरासरी 3 साल ट्रॉफी जीती। तो ये 35वां टूर है इनका, बहुत बड़ी बात है। 37 इयर्स की बड़ी मंजिल, और उसमें भी 35वीं टूर का आयोजन, उसके पीछे जो मेहनत, काफी बड़ी मेहनत का काम है। तो ये रमत गमत के क्षेत्र में तो प्रवीण भाई को हम जानते हैं, लेकिन गए साल में इनकी बुक का विमोचन था आग, और उसके पहले तणखो मतलब ज्वाला, अंगारा। तो ये जो बुक्स थी, तो काव्य संग्रह का विमोचन था, मैं भी वहां पर था। मैंने ये बुक पढ़ी, इनके जो विचार हैं बहुत ही क्रांतिकारी हैं। क्रिकेट को इन्होंने एक जीवन के साथ में सरखावनी की है उन्होंने, और इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी, काव्य में भी उनका काफी हाथ बैठा हुआ है। सच में ये दोनों बुकें काफी क्रांतिकारी बुक्स है। इनके विचार आप देखेंगे ना, तो वैसे जो इनको जो उत्साह है, रमत गमत में तो है ही है, क्रिकेट में भी ऐसा ही उत्साह चाहिए, लेकिन जो साहित्य है उसके अंदर भी जो इनके क्रांतिकारी विचार है, वो सच में बहुत ही प्रशंसा के लायक है और बहुत ही सोचने लायक होते हैं। अभी अंदर CCI जो है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उनकी जो विश्व टूर्नामेंट 1996 में हुई, उसमें इनको टेलीविजन प्रसारण के अंदर 150 करोड़ की इनकम हुई। सोचो आप कितनी इनकम है। 1996, फिर 98 में इनको प्रसार भारती से 235 करोड़ मिले। 2005-06 में 314 करोड़, गए साल में 6 और 7 के अंदर 652 करोड़। सोचो आपकी कितनी बड़ी इनकम हो रही है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ये वगैरह को। तो और उनको 421 करोड़ खर्चा, बहुत ही दिल से खर्चा करते हैं। अभी सब क्रिकेटरों को काफी पैसा बांटते हैं और काफी, फिर भी इनकी बचत 231 करोड़ हुई। सोचो आपके कितनी बड़ी इनकम है। और खेलकूद में आप वैसे भी देखेंगे, ये तो एक बोर्ड है, एसोसिएशन है, लेकिन पर्सनल भी आप देखेंगे तो काफी रमत गमत के अंदर, खेलकूद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इनकम होती है। ये खेलकूद की बात स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी है ही है, लेकिन अगर इनकम की रीत से भी देखा जाए तो उसमें काफी अच्छे पैसे, अच्छे रुपए मिल सकते हैं। गए साल में सितंबर में हमारे ICC वर्ल्ड कप 2020 जो रही है, काफी उत्साह है उसमें, काफी छक्के और चौके लगते हैं। वर्ल्ड कप में भारत जीत गई, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। और देखिए आप, उसमें युवराज सिंह ने क्या किया, एक ही ओवर में 6 छक्के, दैट वाज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी एक बड़ी बात है। उसके पहले ऐसा सर गैरी सोबर्स, इन्होंने नॉटिंघमशायर के सामने, ग्लेनमोरगन काउंटी के सामने, इनमें मार्कस्टोन नेस्ट की एक ओवर में इन्होंने भी 6 छक्के लगाए थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप था 2020, इसमें जो युवराज सिंह ने जो लगाया था, ये 11 महत्व की भारत है, भारत का वो है, इसके लिए हमको भी गर्व लेना चाहिए। अब सोचो कि कितनी बड़ी एवरेज, सेंचुरी की नजीक में एवरेज है। और सेकंड नंबर है पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो था ना, अभी आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। ये पॉन्टिंग में 160 गेम उसने खेली है, 179 इनिंग्स है, हाईएस्ट रन 257 और 60 मिल सकते हैं। गए साल में
सितंबर में हमारे आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 जो रही है, काफी उत्साह है उसमें, काफी छक्के और चौके लगते हैं, काफी उत्साह में पब्लिक देखती है। उसमें वर्ल्ड कप में भारत जीत गई, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। और देखिए आप, उसमें युवराज सिंह ने क्या किया, एक ही ओवर में 6 छक्के, दैट वाज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी एक बड़ी बात है। उसके पहले ऐसा सर गैरी सोबर्स, इन्होंने नॉटिंघम के सामने, ग्लेनमोरगन काउंटी के सामने, इनमें मार्कशॉम नेस की एक ओवर में इन्होंने भी 6 छक्के लगाए थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप था 2020, इसमें जो युवराज सिंह ने जो लगाया था, ये ज्यादा महत्व की भारत है, भारत का वो है, इसके लिए हमको भी गर्व लेना चाहिए। अब सोचो कि कितनी बड़ी एवरेज, सेंचुरी के नजीक में एवरेज है। और सेकंड नंबर है पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो था ना, अभी आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। ये पॉन्टिंग में 160 गेम उसने खेली है, 179 इनिंग्स है, हाईएस्ट रन 257 और 60 की एवरेज है 59.99। और थर्ड नंबर में भारत का द्रविड़ है, जिसने 104 टेस्ट उन्होंने खेली है और 270 हाईएस्ट रन में 9000 रन किए और 58.75 की एवरेज है। तो ये भी हर जगह पे आप भारत देखो, तेंदुलकर के कितने रिकॉर्ड है, देखो आप कि कई चीजों में भारत का भी नाम आ रहा है, जो हम लोग को गर्व लेना है। अभी एक थोड़ी पहले, उसके पहले मैं लेडीज क्रिकेट की बात करता हूँ। लेडीज के अंदर भी, क्रिकेट में भी इंटरनेशनल गेम्स है। लेडीज, भारत की लेडीज भी इंटरनेशनल गेम के लिए फॉरेन में जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे, और कई बार उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो अभी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की झूलन गोस्वामी, शी इज द फास्टेस्ट बॉलर, 120 किलोमीटर की स्पीड से वो बॉल डालती है, और महिला क्रिकेट के अंदर शी इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। और कच्छी क्रिकेटर, आप लोग कच्छी है तो थोड़ा गर्व लेते हैं कभी कभी कि कच्छी क्रिकेटर कौन है। तो हैदराबाद की अवंती कॉलेज में अभ्यास करती है कुमारी नरेंद्र भेदा, जो सिटी टीम में तो स्थान उसको मिला ही है, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भी उसने भाग लिया है। उन्होंने पुलिन छेड़ा करके, जिन्होंने 404 रन की भागीदारी के अंदर इन्होंने 176 रन बनाए थे। लेकिन जो हैरिस, मुंबई हाई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन संचालित अंतरशाला जो टूर्नामेंट होती है, हैरिस शील्ड, उसके सेमीफाइनल में यश गांधी डॉन बॉस्को का लड़का था, जिसने 365 रन किया, हाईएस्ट 365 रन। तो उसमें भी एक अच्छी लड़का साथ में था, और उसके पार्टनरशिप में इन्होंने 404 रन बनाए थे। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 721 रन की भागीदारी हुई। बी मनोज कुमार ने 320 रन बनाए और मोहम्मद शाहबाज ने 324 रन, तुम्बी 324 रन बनाए। दोनों ने 3-3 सेंचुरियां की और 721 रन की जंगी भागीदारी की। इसके पहले ये भागीदारी किसकी थी? वो भी अपनी थी, विनोद कांबली और शारदा विद्या मंदिर के, और अपना सचिन तेंदुलकर, इनकी 664 रन की भागीदारी इन्होंने तोड़ी और 721 रन इन्होंने बनाए। तो इस तरह से हम देखा जाएगा तो ये सब क्रिकेट में तो है ही है, लेकिन हॉकी में भी गए साल में क्या हुआ, हम लोग जीत के आए हैं। वैसा ही शतरंज में अभी विश्वनाथ ने क्या किया, ये रमत की बातें हैं, सब खेल की बातें। इसके लिए मैं क्रिकेट के साथ में विश्वनाथ आनंद की भी बात करूंगा, जो दूसरी बार इसने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। मैक्सिको में आयोजित एशिया का इनाम था, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और एक बात जो सच में जानने लायक है वो मैं आपको करूंगा, खेल के सिवा भी एक थोड़ी बात है, जो गुजराती की लड़की जो भारत की है, 42 ईयर्स उनकी उम्र है, सुनीता। अमेरिका में एक संस्था है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर ये लेडी ने अवकाश यात्री के हिसाब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर 199 डेज, 6.5 महीना, करीब 6.25 महीना वो स्पेस में रही, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रही, और 29 कलाक उसने स्पेस वॉक भी की, स्पेस वॉक ना 29 आवर्स। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बस अभी रईसर स्पोर्ट्स क्लब के जो प्लेयर्स हैं,
जो अभी गांधीधाम जा रहे हैं, तो ये टीम को मैं मेरी ओर से खूब खूब अभिनंदन दे रहा हूँ। और ये लोग जीत कर आए, ऐसी मेरी इच्छा है। और हमेशा ये टूडे सक्सेस हों और नईसर स्पोर्ट्स क्लब और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे, ऐसी शुभेच्छा आभार। एक और विशन जी भाई, एक टूर्नामेंट जो आपके नाम पे थी वॉलीबॉल की, उस टूर्नामेंट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को आप प्रेजेंट नहीं थे, तो हम चाहते हैं वो मौका ना गंवाए और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज हम कर लें। आपके नाम से ट्रॉफी और जीतने वाली टीम के कप्तान भी यहाँ मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि विशन जी भाई के हाथ से उस बैलेंस टूर्नामेंट की ट्रॉफी आज उस कप्तान को, जिन्होंने क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ मराठीत बोलायचं एवढंच कारण विजयभाई की मला वाटतं एक मोठ्या कवीने म्हटलंय की स्वतःचे मनाचे विचार सांगायचे असतील तर मातृभाषा ही सर्वात सोपी असते। आणि विनंती करीन विजयभाईंना की जे आमचे प्लेयर्स चालले त्यांचं मनोबल तुम्ही वाढवायचं आहे। एक स्पोर्ट्स क्लब आयोजित आजच्या या फंक्शनचे चीफ गेस्ट मुंबई प्लेयर असोसिएशनचे जॉईंट सेक्रेटरी श्री हेमंत वाईंगणकर साहेब, मंचावर उपस्थित इतर मान्यवर, आजच्या या कार्यक्रमापूर्वी आपल्याला एक गोष्ट निश्चित लक्षात आणून देऊ इच्छितो की प्रवीण गोगरी यांना मी माझ्या शाळेच्या वयापासून ओळखतो। त्यांचं नाव, त्यांचं दहिसर स्पोर्ट्स क्लब हे मी दहिसरमध्ये इथे पांढरपेशे लोक किंवा काही हे नाका ही गोष्ट बोलतात, त्या नाक्यावर त्यांची माझी ओळख झाली आणि त्या माध्यमातून ओळख होत त्यांना मी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। पण दहिसर भाऊदेव स्पोर्ट्स क्लब चालू झाल्यानंतर आज त्याला 7 वर्ष झाली। पूर्वी आमच्या क्लबमध्ये आम्ही स्वतःच क्रिकेटचं प्रशिक्षण द्यायचो, त्यामध्ये मुलांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न केलो। पण जे प्रोफेशन क्रिकेटमध्ये असावं लागतं तिथे थोडंसं आम्ही कमी पडत होतो। डॉक्टर PV शेट्टी आज इथे नाही आहेत, त्यांनी मला एक दिवस बोलून सांगितलं की तुम्ही प्रवीण गोगरींच्या हातात क्रिकेटची सूत्र द्या। प्रवीण गोगरी दहिसरचं नाव उज्ज्वल करतील, तसं मुंबई क्रिकेटचंही नाव उज्ज्वल करतील। आणि मी गेली 3 वर्ष बघतोय क्रिकेट, गेली 3 वर्ष मी त्यांना फार जवळून बघतोय। नुसतं क्रिकेटच नाही तर मुलांना शिस्त कशी लावावी, डिसिप्लिन काय असावं आणि त्यांच्या पालकांच्या त्या तक्रारी आहेत मुलांच्या बाबतीत, त्या खाण्याच्या बाबतीत असू दे, अभ्यासाच्या बाबतीत असू दे, इकडे जातीने प्रवीण गोगरी लक्ष देतात, त्यांना ते करायला लावतात, त्यांच्याकडून करून घेतात आणि कुठेही मुलगा कमी पडणार नाही याची दक्षता देतात आणि पालकांना त्याच्याबद्दल ते आत्मविश्वास जाणून देतात। ही फार मोठी गोष्ट आहे। नुसतं मुलगा खेळायला गेला आणि 4 तास खेळून गवळून झोपला अशी गोष्ट ते करायला देत नाहीत। त्याच्याबरोबर ते TV न बघता तुम्ही अभ्यास करा, अभ्यासातही पुढे या, या गोष्टी त्यांच्याकडून करून घेतात। किती कमी पडला तर का कमी पडला हे त्याच्याकडून दरडावून समजून घेतात। स्पोर्ट्स क्लबला 37 वर्ष आली, त्याच्यामध्ये 35 वर्ष, 35व्या वर्षी त्यांची टीम गांधीधामला जाते, फार अभिमानाची गोष्ट आहे। तशीच दादासाहेबांनी आता मला वाटतं बरेच क्रिकेटचे रेकॉर्ड सांगितले, त्यामध्ये पैशाचाही त्यांनी उल्लेख केला की भारतीय क्रिकेटकडे असोसिएशनकडे एवढा अमाप पैसा आहे। पण मी मुलांना सांगू इच्छेन की तुम्ही जर क्रिकेट चांगल्या पद्धतीने खेळाल तर तुम्हाला पैसा मिळेल, तर नुसतं टाइमपास केला तर तेही होणं शक्य नाही। त्यामुळे तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळा, नाव कमवा आणि तुमच्या या टूरला मी शुभेच्छा व्यक्त करतो। ऑल द बेस्ट। थँक्यू विजयभाई, थँक्यू व्हेरी मच। ते खरंच आहे, डिसिप्लिन इज द की टू ऑल सक्सेस। Cricket is played today on the field as well as off the field. There are many personalities here on the dais who can give us a better idea of how cricket has been played nowadays.
Before we proceed, I request Hirji Bhai Shah. कहता हूँ अगर वो गांधीधाम है तो 24 तारीख में कच्छ में हो, तो कच्छ में हमारे पास हो। यही हम सुनना चाहते थे, इसलिए तो मैं चाहता था कि थैंक यू प्रवीण भाई, हिरजी भाई ने बोला एक इवनिंग टी का अपना काम हो गया, चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आजकल थोड़ा प्रवीण भाई का नाम आपको शुभेच्छा नहीं, वो हेमंत भाई ने वो लास्ट में बोलेंगे। मुझे बहुत खुशी है Mr. Vengankar and all the guests sitting on the dais. I really appreciate your passion and dedication for the game. At this age, you are continuing and inspiring, young talent. When you were talking to me about Golden Jubilee, अभी 13 साल और हैं, मैं आपको एक शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी क्लब के बच्चे जो खेल रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा लड़का हो जो बॉम्बे और आगे चल के इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो आपका ड्रीम सही में मतलब सफल होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई टेल दीज बॉयज who are visiting Kutch. Kutch is a lovely place and I think you will enjoy playing there and wish you all the best. You enjoy the game and really learn good things about it. Thank you. Thank you. Next, Shri Nitin Bhai Shah, Total Sports. Inviting me here. I am here because of only one man, Mr. Gogri. I have known him for hardly a month or so, and his passion and dedication for the game of cricket and other games, as Mr. Vasanji Bhai said. And I know him also as a poet, as a writer, as a singer, and he is phenomenal. He is very good. As far as our game is concerned, cricket is one of the biggest games in India, I suppose, and I wish the team all the best for that. And I would like to say only one thing: always play to win, no matter what, and play for the love of the game more than money, anything else. I got into this business of sports and fitness because of love for sports. My intention was not to make money out of it, but now it has turned out to be a big business. Other than that, I wish Mr. Praveen Gogri and his team all the best, and I hope that you win the cup and come back. All the best. Well, Nitin Bhai, you have rightly said. I would like to put one word that into it. I feel now in India, cricket is a religion, and you need to follow it. It's no more a game. It's taken a turn of a religion. So cricket is really everything into the blood of the new generation that's coming up. Before we proceed, I request Ramesh Bhai, your words of wisdom to the players. Ashish. My friend Mr. Hemant Vengankar, gentlemen sitting on the dais, cricket lovers, the chief members who is going to visit Kutch for playing for Dixon Sports Club, ladies and gentlemen. Much has been said about me, my association with Dixon for the last 38 years. When I found Praveen Gogri is an ardent supporter of the cricket and also a man of discipline, which club in 1970 I had an occasion to bring it to the Mumbai Cricket Association as one of the affiliated clubs. Some of the speakers have already said that the cricket clubs in Mumbai, there are about 350 clubs are with the affiliated. Some are the associate member. I have been always dwelling upon this point every time when I speak. Out of all these clubs affiliated or associated with the Mumbai Cricket Association, this is the only club which plays tournament practically every year, go out of Mumbai, play matches at the different levels, different states. Apart from all these, every Sunday, this is the only club, an affiliated club of the Mumbai Cricket Association, plays every Sunday the matches on Azad Maidaan. And my association with him is a very long one, and I hope if I live long for another 13 years,
I'll be already present on the Golden Jubilee of the National Sports Club. Well, friends, about the game, I think we found today one of the Anand Rosa's comments, the all records which has been gathered by one of the speakers. And I believe many of you would have been surprised to see or hear rather the great records has been compiled and informed to all of you, especially the youngsters who are sitting over here. You have to take note of this. Simply playing cricket is going to help you. Education is a very important factor. And today if you see, the Indian team already have most of the educated cricketers. But today I believe all of them have learned and hear the connotation or whatever you may call the language of English. So you should also study and play cricket. I think most of your tour has been a very successful one. And I, on behalf of all of you, wish Praveen Bhai, a captain of 57 years old, looking so young now, very energetic, very enthusiastic, lead the side and win all the matches in Kutch in years, 10 days to come. I think the galaxy of the people sitting over here, it seems they are the very good sponsors for the game of cricket. And I would request that the cricket is the game of a sponsors. So rupees the BCCI has got. But at the level of the young, small clubs, this is very important. The sponsors now, you all gentlemen sitting over here, and what I see all the advertisements. This is one of the reasons why the Research Sports Club or any other small club can venture to go to out of Mumbai, play matches and spend money for the cause of game of cricket. I always emphasize, these cricketers are getting a lot of money, but poor cricketers, they don't even shirt and pant. And this we have discussed at the very length. I think Mumbai Cricket is also looking into this. The schools tournament rather, school boys also are going to be encouraged. This is what we have thought of a years back. And I hope that all the youngsters which do not have bat, ball or white pant, white shirt may get it by way of the sponsorship so that those boys also can be encouraged to play cricket. And as everybody said, the money is the prime factor today in the game of cricket. But that you should prove it. Money is not going to come like that. You've got to prove it. You have to work hard. And as I said, discipline is very important in all walks of life. And that is how we should learn it and do it. And the good boy, I think Kutch has got what wicket they have got? So now I am everywhere, there is a grassy wicket. Formerly we are playing on the mat wicket. But since Mumbai boys are going to play on that wicket, I think we will not find any difficulty. And I believe all of you come successful. And thank you very much for giving me an opportunity to say a few words.